if you're someone like me who constantly feel like they are at the end of the rope, they are at the end of their mental and physical energies, and kitna bhi kar lo, even if you're functional, you find yourself being overwhelmed, overburdened with things that happen during the day, after the day, and you feel like no matter what you do, you are not feeling good about what you are doing, not feeling good about waking up in the morning, going to your work, doing the things that you are supposed to do, and you feel like you are under a lot of pressure, you're drowning in so much work, और एंड में क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली आप बर्नआउट में चले जा रहे हो, और जब उसमें जा रहे हो सो योर कोपिंग मैकेनिज्म्स आर ऑल्सो रियली बैड, यू फाइंड योर सेल्फ being at the end of the rug for your mental health, and आप फिर क्या करते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप सोशल मीडिया पे जाते हो, आप ब्रेन रॉट कंटेंट देखने लगते हो, आप कहीं कुछ नहीं करना चाहते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी भी जीरो हो जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज इफ यू डू नॉट schedule a break, your body will schedule one for you. And this is lesson number 13 in 30 lessons for 30-year-old me, a series that I'm doing on this channel as a recently turned 30-year-old software engineer. I am also someone who has struggled with her mental health for over a decade, and with time, with a lot of tweaking in my process, and with help from therapy, I have been able to find some answers to all of these fairly simple but complex problems. And if I can help the other person, pass it along to the other person, I would feel like my job here is done, and I feel very purposeful in my journey. At least someone can learn from my story and not do the same mistakes. So this is the attempt of making this series, and if you want to stick by till the end of the video, I will highly appreciate it. In the meantime, you can also subscribe to the channel because I come up with these videos every week. I have also been trying to show more of my life about productivity and what I do with my fitness, and how I am able to sustain a 9 to 5 job, a career over here, and still find time to be happy, spend some time with my family, with myself, and live a balanced life. It's not always easy, it is almost always a very difficult problem to solve, but I am here to show you how and what things work for me. If that's something that works for you, well and good. Please like the video if you like it, comment down below, subscribe to the channel, and share it with your friends who you want to share these things with. With that said, let's get into today's video. When I say break, और ये एकदम अप्रोप्रिएट टाइम पे ये टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत महीनों से फील कर रही हूँ कि मैं बहुत बर्नट आउट हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जगल कर रही हूँ, कॉन्टेक्ट स्विच भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है. फर्स्ट माई फैमिली विजिटेड, एंड देन आई एम विजिटिंग माई फैमिली, एंड थिंग्स फील लाइक इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस. जो कि लाइफ होती है, ऐसी ही होती है, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा होता, पर उसमें भी मेरे कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं जिनके पीछे मैं जा रही हूँ. तो मैं बहुत ज्यादा बर्नट आउट फील कर रही हूँ अभी, और मैं चाह भी रही हूँ कि मैं धीरे धीरे उस बर्नट आउट से बाहर आऊँ. पर अभी मैं बहुत समझदार हूँ कि मुझे रियलाइज हो जाता है, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी, या फिर अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे रेस्ट की ज़रूरत है. पर एक समय था, बिकॉज मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने बहुत समय से कोई ब्रेक नहीं लिया था, और मैं बहुत चीज़ों के पीछे अननेसेसरीली जा रही थी, जबकि नोइंग फुली वेल कि मेरी मेंटल और फिजिकल capability नहीं बची है. So instead of taking a break at that time, I was constantly just running into circles of trying to make things work. क्यों वो वर्क करेगा अगर मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही ही नहीं है? वो कभी भी वर्क नहीं करता है. और मुझे ये बहुत हार्ड लेसन सीखना पड़ा. कैसे सीखना पड़ा? मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, टू द पॉइंट वेयर आई कांट ईट, I am not able to sleep well, I am not able to feel well, constantly on the edge, have panic attacks, be anxious, be overwhelmed. आप काम कर रहे हो फिर भी आपको कुछ फुलफिलमेंट नहीं लग रही, आप डिप्रेसिव एपिसोड्स में जा रहे हो जहाँ आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, जबकि आप बहुत डिजर्विंग हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, फिर भी आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप डिजर्विंग हो और आपको एक रेस्ट की ज़रूरत है. ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई, और बहुत सालों तक ये चीज़ होती रही. मुझे हमेशा ही ऐसा लगता रहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना है लाइफ में. बहुत सारी चीज़ें, ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स की जड़ थी कि अगर मैं कुछ करूँगी तभी मैं एक तो डिजर्विंग ऑफ लव हूँ,
अगर मैं कुछ प्रोडक्टिव या फिर कुछ ऐसी चीज करूंगी जो मेरी लाइफ में एड ऑन करेगा सक्सेस के पैरामीटर में, तो ही मैं खुश रह सकती हूँ। और उस अटेम्प्ट के लिए मैं एंड ऑफ द वर्ल्ड तक जाने के लिए भी तैयार हूँ, जो कि मैं हूँ। मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, बट उसके साथ मुझे इतना नहीं समझ आता, मुझे नहीं पता चलता कि कब रुक के 2 मिनट ठहर जाना चाहिए, और ठहर के थोड़ा सा सांस लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना वो बिगर प्रोसेस होता है। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। आवर बॉडी इज अ वेरी होलिस्टिक मशीन। इट्स नॉट लाइक आप एक दिन बहुत ज्यादा काम कर लेंगे, बहुत ज्यादा रनिंग कर लेंगे एक ही दिन, तो आप दूसरे दिन भी उसको सस्टेनेबली सस्टेन कर पाओगे। ऐसा नहीं होता है। और जब मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था, तो मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, मेरे को लग रहा था कि मुझे बहुत प्रोडक्टिव रहना है, मेरे को लग रहा था कि मुझे अपनी लाइफ फिक्स करनी है, मेरे को लग रहा था कि उसको फिक्स करने का एक ही तरीका है, बहुत ज़्यादा मेहनत करो। बचपन से ही मुझे मेहनत करना आता है, तो मैं मेहनत तो कर रही थी, पर मुझे कभी शायद किसी ने सिखाया नहीं, या फिर मैं इंडिया से हूँ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शायद बहुत कम लोगों को पता है कि अपने मेंटल हेल्थ की टेक केयर कैसे करें, अपनी टेक केयर कैसे करें। और शायद बाहर भी बहुत लोगों को नहीं पता है, तभी लोग बोलते हैं कि अभी एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, और तभी लोग बहुत ज़्यादा टूर्स और थेरेपिस्ट को अप्रोच कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, मैं हमेशा बोलती हूँ, गो स्पीक टू अ प्रोफेशनल। इट ऑलवेज हेल्प्स इफ यू कैन फाइंड अ गुड थेरेपिस्ट दैट कैन हेल्प यू मैन्यूवर योर डिफिकल्ट problems and help you arrive at decisions on your own. So with that said, मुझे हमेशा ऐसा लग रहा था कि मुझे मेहनत करनी है, और मेहनत के बाद जो मुझे सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी या अचीवमेंट मिलेगी, प्राप्त होगी, उसी चीज़ से मुझे तृप्ति मिलेगी, उसी चीज़ से मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। ये चीज़ मैं 1 साल कर सकती हूँ, 2 साल कर सकती हूँ, पर लाइफ बहुत लंबी होती है, और हम हमेशा बच्चे नहीं रहते, हमेशा हमारे गोल्स यही नहीं रह सकते कि अपने करियर में सक्सेस करो या फिर अपना एग्ज़ाम एस करो। हो सकते हैं, जब मैं अगर ऐसा सोचो, जब मैं 19-20 ईयर्स ऑफ ओल्ड थी, मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन जस्ट स्टडी, अदर देन जस्ट मेकिंग माई करियर, उसके अलावा कुछ नहीं थी। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेनी है। कोई पेरेंट्स, कोई आपका सिबलिंग, कोई आपके दोस्त यार, कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले रहा, तो आपको धीरे धीरे सीखना पड़ता है कि बाकी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लो। ऑब्वियसली करियर में आप एक्सेल करना चाहते हैं, तो आप उसमें एफर्ट डालोगे, बट हर चीज़ में लाइफ में बैलेंस्ड व्यू पॉइंट रखना भी इम्पॉर्टेंट है। ये तो मैं बहुत इजी से सिंपली बोल रही हूँ, बट मैं बहुत बार देखती हूँ कि लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है टू डिटैच फ्रॉम देयर वर्क, टू डिटैच, to close their laptop, to unwind after a very long hard day and not feel like constantly they have to check notification, constantly they have to be on their laptops, और constantly be anxious about कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, ऑफिस में तो नहीं हो गया, या फिर कोई और गोल हो सकता है आपका। मैं कॉर्पोरेट के सेंस में बात करती हूँ, क्योंकि मेरा होल करियर 9 to 5 में ही रहा है, कॉर्पोरेट में ही रहा है, वहाँ से मैं एग्जाम्पल्स पिक करती हूँ। बट उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा अपने करियर में एडवांस करना चाह रही थी, और उसके लिए मेहनत लगती है, कुछ एफर्ट लगते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, जो कि करना ही चाहिए, आप करते रहेंगे। पर मेरी जब मेंटल हेल्थ एक्चुअली में खराब ही थी, जैसे मैंने बोला कि द सेंस ऑफ कॉन्स्टेंटली बीइंग प्रोडक्टिव वाज ईटिंग अवे माय लाइफ फ्रॉम मी। इमेजिन समवन हु फील दैट दे कैन ओनली बी हैप्पी व्हेन दे कीप डूइंग थिंग्स, एंड व्हेन दे keep at it, in the end they will achieve some satisfaction by doing those things. But what happens is, because you never feel like you're doing enough, क्योंकि एक नेगेटिव साइकिल है आपके दिमाग में, तो आप कभी भी अपने आप से खुश नहीं रह पाओगे। और आप कितना भी वर्क कर लो, कितना भी करते रहो, अगर आपके पास अगर एक छोटी सी चीज है, एक रुपया भी है, ठीक है, और उसमें आपको नहीं पता कि आपने कमाया, आप खुश रह पा रहे हो, तो आप चाहे $1 मिलियन कमा लो, चाहे आप 1 करोड़ रुपए कमा लो, आपकी वो टेंडेंसी हमेशा ही रहेगी, क्योंकि आप अंदर से दुखी हो। और अंदर से दुखी का मतलब ये है कि मेंटली आप वेल नहीं हो। ये पैटर्न मेरे साथ चल रहा था। मैं करियर में थोड़ा एडवांस करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे कंपैरिजन था, मैं दूसरे लोगों को देखती थी, मुझे लगता था मुझे भी उस प्लेस पे रहना है। पर डीप डाउन मैंने कभी ब्रेक ही नहीं लिया लाइफ में, और मैं उन चीज़ों के पीछे सिर्फ एक के बाद एक भागे जा रही थी।
मेरी बॉडी एकदम से बहुत ज़्यादा क्रैश करी। जब क्रैश करी, जब मैंने खाना, बहुत टाइम से मेरे को एपेटाइट नहीं थी, 2-3 साल से मैं खाना बनाती भी नहीं थी, खाना बहुत कुछ इधर उधर खा लिया। आई कुडेंट इवन स्टमक फूड, एंड व्हेन दैट हैपेंस यू बिकम थिन, you are constantly irritable, you don't have any hunger, you don't appreciate the sense of taste and food, which is a very sad state to be in, to be honest with you. Then I am not able to sleep well. Anytime I just hit the bed, I am not able to just fall asleep, and then in the morning when I wake up, then I feel less rested, and then this cycle continues. And with that I am not able to give my 100% at work, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है। ये भी बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी स्टेट ऑफ माइंड है। देन आई एम नॉट लीविंग माई हाउस, आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड, आई एम नॉट मेकिंग कनेक्शन, आई एम नॉट बीइंग सोशल, नॉट मेकिंग फ्रेंड्स। ऑल ऑफ दीज थॉट्स देन लीड टू ओवर थिंकिंग, और दिमाग में आपके बहुत ज़्यादा थॉट्स पूरे टाइम बंद रहते हैं और आपको ही खाते रहते हैं। अब मैं अपनी लाइफ के थोड़े से ट्रिगरिंग पार्ट के बारे में बात करूंगी, तो किसी को स्किप करना है तो आप स्किप कर दीजिए प्लीज़। और मैं अब वैसा फील नहीं करती, तो मेरे लिए बुरा मत फील करना। मैं अब उस स्टेट से बहुत आगे आ चुकी हूँ और एक्चुअली मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ। कभी कभी मैं नॉर्मल लोगों की तरह, नॉर्मल लेवल ऑफ बर्नआउट जो लोगों को होता है उसमें आ जाती हूँ, और फिर मेरे को लगता है मुझे वापस आना है। पर वो जो स्टेट था जिसके बारे में मैं बात करूँगी, वो बहुत abnormal था, और ऐसा अगर हो रहा है तो समटाइम्स यू माइट need immediate medical attention, and I don't know why I did not seek it out then. Eventually I would go to do that, and it helped me, it benefited me. But there was a point where my anxiety and my depression, it was around the point मैंने जब अपना फर्स्ट जॉब छोड़ा और उसके बाद मैंने अपना एक ब्रेक लिया, ठीक है। और मेरे को उसी समय ये समझ जाना था मुझे क्या करना चाहिए था। मुझे अपनी मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए कुछ एफर्ट्स करने थे, क्योंकि उस समय तक मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी, पैनिक अटैक्स, स्लीपलेसनेस, जस्ट ओवरऑल फीलिंग लाइक शिट हो ही रहा था, हर समय मुझे होता था। तो मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करती थी अपनी लाइफ के बारे में, और उसके बाद मैंने अपना जॉब भी क्विट कर दिया। और क्विट ये करके किया कि मैं अब पढ़ाई करके दूसरा बेटर जॉब लूँगी, और जब मैं वो जॉब लूँगी तो उससे मुझे सक्सेसफुल फील होगा और मेरी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएंगी। तो जिस समय पे मुझे बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना था या बैठ के अपने आप को स्पेस देनी थी टू हील एंड टेक हेल्प फ्रॉम माय फैमिली, माय पार्टनर, माय फ्रेंड्स, आई वेंट अबाउट गोइंग अलोन एंड सीकिंग कि मैं खुद से कर लूँगी, और मैं खुद से जब सक्सेसफुल इमर्ज करूँगी दूसरी तरफ, क्योंकि मैं तो मेहनती हूँ, मैं तो कर ही सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती। आई विल प्रूव इट टू माई सेल्फ। You don't need to prove anything to anyone. You need to be okay in your life first. There is nothing to prove. Not to your parents, not to your friends, not to your siblings, not to your partner, not to yourself even. There is nothing to prove. Your goal in life is only to build a life that sustains you, that speaks to you, that is a way of, that reflects the way you want to live, and that is sustainable, that gives you the peace that you deserve. Okay, with that said, I'm sorry I got a little riled up, but I was the kind of person who would try to prove it to myself, to my peers, to everyone around me कि मैं कर सकती हूँ। तो कर तो मैं सकती ही थी, ऐसा तो नहीं है मैं नहीं कर सकती। मैं ये बिलीव करती हूँ कि सब लोगों के अंदर कैपेबिलिटी होती है टू मेक इट। सब लोगों के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि कंसिस्टेंटली वो एफर्ट्स करें टुवर्ड्स देयर बेटरमेंट। कभी कभी लाइफ की सिचुएशंस या उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ उस चीज़ के वे में आ जाती है और हम लोग भटक जाते हैं, और ये प्रॉब्लम भी लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो भी ओके है। और अगर आप उसके ओवर आ जाओगे, अदर साइड पे आ जाओगे, तो आप देखोगे कि कोई बंदा जिसको शायद सही में कुछ नहीं आता है, वो भी कंसिस्टेंट एफर्ट से एक जगह पहुंच सकता है जहाँ पे वो खुद ही सरप्राइज हो जाए कि ये मैंने कैसे कर दिया, और डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को अचीव कर जाए। क्योंकि बॉडी की लिमिट तुम्हें नहीं पता है, कंसिस्टेंसी की पावर तुम्हें नहीं पता है कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। विद दैट सेड, उस समय मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं प्रूफ करूंगी, और मैं मेहनती तो हूँ ही, चलो मैं करूंगी, करके दिखाऊंगी। फिर मैं कर रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। बट उस समय पे मुझे बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस, जैसा कि एक प्रोसेस होता है इंटरव्यू का,
भी फेस करने पड़े हैं, मेरी जो वर्स्ट इनसिक्योरिटीज़ हैं वो बाहर आ रही हैं, उसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा है, उससे मैं रोज़ लड़ रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं कर रही, उसको कुछ भी तवज्जो नहीं दे रही, उसको बिल्कुल बैक बर्नर पे रख दिया। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग इनटू bodily pains. I don't know how to explain it. I became physically sick in the sense my stomach will just punch up. It would pain so much, and I would get like body aches over the shoulder, in my leg, headaches, and the tension in your muscles. My legs would tense up, they will start paining, and I would just be bedridden a lot of times. It was extremely painful, and when people say that mental health is not real, it is extremely real. All of these things were manifesting because my mental health was not good, it was not up to the mark, और वो धीरे धीरे बॉडी आपको सिक फील कराने लगती है और आपको खुद और बुरा लगने लगता है कि मैं ऐसे क्यों फील कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मेरे को ओके क्यों नहीं लग रहा। तो इतना ज़्यादा बुरा स्टेट, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को कुछ भी रेस्ट नहीं दे रही थी, कभी मैंने दिया ही नहीं ऑल दीज ईयर्स अगो। हमेशा मुझे ये लगा कि मैं एक प्रोडक्टिविटी मशीन हूँ और मैं करती जाऊंगी और मैं एकदम सक्सेसफुल होती जाऊंगी। दुनिया में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो तो बात की बात है। क्यों लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है और लाइफ में बहुत सारी चीज़ है, सिर्फ प्रोडक्टिविटी, सिर्फ आपका जॉब टाइटल, आपका पैसा, और आप कितना एक प्लेस में अपने कलीग्स के अराउंड माने जाते हो, इसके भी ऊपर लाइफ है। ठीक है, तो क्यों है, क्योंकि वो आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारी चीज़ें कि सुबह उठो, आराम से अपनी चाय कॉफ़ी बनाओ, ऑफिस जाओ, थोड़ा बहुत काम करो, बहुत ज़्यादा काम करो, जितना मन करे उतना काम करो, बट फिर घर आओ, अपने पार्टनर के पास बैठ के दो चार बातें करो, अपनी फैमिली से बातें करो, फिर थोड़ा सा जो आपको पसंद है या तो बुक पढ़ लो या फिर थोड़ी एक्सरसाइज करो या फिर टीवी देखो, और फिर आराम से ये सोच के कि आज के दिन में मैंने बहुत सारी चीज़ें, वैरायटी ऑफ चीज़ें करी और फिर उसके बाद मैं सेटिस्फैक्टरली सो गई या सो गया। ये एक बहुत बैलेंस लाइफ होती है, बट आई डोंट नो, पीपल आर नॉट गेटिंग इट, नो वन इज एबल टू डू इट। इट सीम्स सो सिंपल कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, ऐसा सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। वो नहीं हो पाता, हमेशा नहीं हो पाता। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली किसी को कि आप सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ और सिर्फ इसी पे फोकस करो। डिफरेंट पैरामीटर ऑफ लाइफ विल आस्क फॉर डिफरेंट प्रायोरिटीज, शिफ्ट इन प्रायोरिटीज, वो आपको डिसाइड करना है। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको हमेशा जब भी फील हो कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा रॉन्ग थिंग्स के पीछे भाग के अपनी हेल्थ को ओवरलुक कर रहे हैं, आपको वहाँ रुकना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, यू कैन क्लियरली सी, वंस यू कैन सी, यू विल क्लियरली सी कि आगे आपको कैसे आप बीमार हो जाओगे, और फिर आपका एक तरीके से जिस प्रोसेस को आपको एंजॉय करना था और जिस प्रोसेस में आपको ओके फील करना था या फिर जिस प्रोसेस के लिए आपको प्रोडक्टिव फील करना था, वो ही आप नहीं कर पाओगे, और उसके बाद आप ही का डेज का लॉस होगा। अगर आप ऐसे सोचना चाहें तो कि आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होगी, क्योंकि आपको रुकना ही पड़ेगा, आपकी बॉडी आपको बता देगी। उस समय भी अगर आप एक्सप्लॉइट करोगे तो मैं तो ये मानती हूँ आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करते। आपकी बॉडी आपको कुछ बताना चाह रही है बट आपके लिए कुछ और ही इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है, वेल एंड गुड, आपके एक्शंस लीड टू सम कॉन्सिक्वेंसेज, यू विल सी व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज यू विल सी। पर आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस समय 2 मिनट रुक जाओ और ये देखो कि उस पैरामीटर में मैं कैसे अपनी टेक केयर पहले करूँ, और उसके बाद आई विल ऑलवेज पिक अप वर्क व्हेन द टाइम कम्स। हम सब लोगों को ना एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, एंजाइटी हमेशा रहती है कि अगर ये हो गया तो कैसे होगा, अगर वो हो गया तो कैसे होगा, अगर मैंने छुट्टी ले ली, अपनी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा, अगर मैंने इस चीज़ को अभी मिस कर दिया तो क्या होगा। सब चीज़ें लाइफ में हो जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं खाली बैठे रहो, बट अगर तुम अच्छा ही फील नहीं करोगे तो तुम कभी भी प्रोडक्टिव और टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज जाके वो काम को फिनिश नहीं कर पाओगे। थिंक ऑफ थिंग्स एज हैविंग अ फाउंडेशन। योर फाउंडेशन हैज टू बी स्ट्रांग, which always comes from a holistic sense of view. I'm talking about physical health here, but your mental health should be also good.
एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। उसके ऊपर आप अपना ताजमहल, कुतुब मीनार, पहाड़ सब बना सकते हो अगर आपकी फाउंडेशन एकदम सही रहे। तो उस फाउंडेशन के टुवर्ड्स वर्क करने के लिए यू नीड टू रियलाइज आपकी बॉडी को क्या सही लगता है और क्या सही नहीं लगता है, और आप कैसे धीरे धीरे एक सस्टेनेबल रूटीन स्केड्यूल रख सकते हो जो वर्क करे आपके लिए। बहुत सारे लोग स्केड्यूल्स और रूटीन्स से बहुत आना चाहते हैं बट बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मैं उनमें से एक हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू हैव अ रूटीन फॉर ईयर्स नाउ एंड इट्स ओनली नाउ आई फील आई हैव हैड सम सक्सेस इन हैविंग अ सस्टेनेबल रूटीन। सो दिस इज एन एवर ग्रोइंग प्रॉब्लम जो है ही। बट अगर बहुत ज़्यादा आपको अपनी बॉडी के बारे में पता है, आप उसके ओवरलुक कर रहे हो, तो एंड में टुडे आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु इज एबल टू सी एंड में 1 महीने बाद क्या होगा। 1 महीने बाद यही होगा कि मुझे ही छुट्टी लेनी पड़ेगी या फिर मुझे ही सिक हो जाऊंगी मैं। बहुत सारे लोगों को बुखार हो जाता है। इस समय मैंने एक और बात बोलूंगी, मैं पहले ही बात खत्म करती हूँ। या तो बहुत सारे लोगों को हेडेक्स हो जाते हैं, दे डोंट फील लाइक they are up to a task, and they also not able to exercise, they are also not able to eat well, and it reflects in your body. You can see you don't feel good in your own body. You can do whatever you want to do at work, whatever you want to do with your productivity, but in the end you're not going to feel happy in a body that you live in. Okay, and that's a very sad state to be. एडिंग टू दैट पॉइंट, आई रिमेंबर टुडे दैट उस टाइम के अराउंड ना मुझे हर साल बुखार होता था, वायरल फीवर होता था, और मेरी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा लो थी क्योंकि मेरी स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा मेस्ड अप थी और मैं उस हिसाब से बहुत बीमार थी। तो मेरे को हमेशा मैं बीमारी के बहुत ज़्यादा प्रोन थी। Now, surprisingly, all these years ago, I feel my immunity is over the charts, touch wood, and I never feel like I get into those sick days a lot of times because I have been able to be taking rest, stop, and exercise. I go out for my runs. I feel happy and healthy. I eat a lot. All of this happened when I went to therapy, and I have been able to discuss, get tools to be able to see कि ठीक है, I have to rest. उस समय जब मैं अपने थेरेपिस्ट के पास गई थी, you should see me. I used to look really frail. I used to have dark circles. I used to be sitting like this. My posture would be very slouchy, and I wouldn't even be able to speak without crying a lot. That's not very normal. It's not normal to be that sick. And eventually I started blooming, I would like to say, when I stopped and I realized that if I would have used that time, and I went to my therapist, I finally went to therapy when I got another job finally, and that job was also taxing, and I was having other processes in place, and even then I had to go to therapy. If I did not go to therapy, God knows I wouldn't have been able to be sitting here like this smiling and making videos, because बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी। और जब वो ख़राब हालत थी तो मुझे जाना ही पड़ा, मुझे अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता था। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता था कि मैं कैसे निकालूँ, बिकॉज थेरेपी बहुत ईजी प्रोसेस नहीं है। मैं बहुत उसको शुगर कोट नहीं करना चाहती कि उसके एंड में आपको एक सोल्यूशन हमेशा ही मिलेगा। इट्स लाइक यू आर बेयरिंग योर इमोशंस दैट यू हैव been living ever since you were a kid, old habits you have to accept, and every session can also be very raw and real. So there was a time I would also cry after each session because it was very raw to accept some emotions. हमारी आदत होती है हम compartmentalize कर देते हैं to the benefit of what process we are trying to achieve, या फिर हमें लगता है यार काम कर लेते हैं, हमारे ये सब coping mechanism होता है, हम overlook कर देते हैं, under the rug कर देते हैं चीज़ों को। कभी ना कभी वो चीज़ हमेशा फटेगी। अगर आपको अपनी इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं आता तो कभी ना कभी वो फटेगी। मैं ये नहीं कह रही जाके उसी समय एड्रेस करो, हर चीज़ का समय होता है, आई अंडरस्टैंड, बट आपके पास स्पेस भी होनी चाहिए कि आप बैठ के 2 मिनट सोच पाओ कि अच्छा मुझे अपनी लाइफ में अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ, और उस इमोशन को रिस्पेक्ट कर पाए। तो ये तो ऊपर की बात रही कि ऐसा क्यों आपको करना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी मैं बोल रही हूँ, बट अगर आप मेरे से छोटे हो या आप मेरे से बड़े हो, अगर स्पेशली मेरे से छोटे हो, तो अभी आपको लगेगा आपकी बॉडी एकदम सही काम कर रही है, क्योंकि यंग पीपल्स बॉडी जस्ट बाउंस बैक बहुत इजीली, ठीक है, और आप एक्सप्लॉइट भी करोगे थोड़ा बहुत, आई नो इट, विच इज़ फाइन। अपने टाइम पे सारी चीज़ें करो जो आपको सही लगे, बहुत ज़्यादा मत करो, मॉडरेशन में सब चीज़ें ट्राई करो, पर उसके बाद
जब आप धीरे धीरे बड़े होगे तो आपको दिखेगा कि आपकी बॉडी ओल्ड हो गई है, देयर आर साइंस ऑफ एजिंग, इट्स नॉट द सेम एज इट वाज, एंड इट्स ऑलवेज बेस्ट टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ इट अर्ली ऑन. नाउ लेट्स गो टू हाउ यू कैन डू दैट, बिकॉज मैंने थोड़ा ज़्यादा सीरियस मैटर के बारे में बात करी, बट क्या पता आप नॉर्मल लाइफ में भी चाहते हैं कि आप ओके फील करो और आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और आप रेस्ट करो. First, you have to think of it from the outlook perspective. What is your outlook? As I said, okay, I have some goals, I have to be productive, but I have to also be respectful enough for my body. How can you do that? You look for signs. You can read about things, you can understand your body better. One thing that helped me overcome my stigma of being depressed was I understood the science behind it. I read about it, I looked at a few podcasts about it, and I understood that this is something that has gone beyond my control, and there is very scientific biological reason for these things happening to me. When I understood it, I accepted it, I stopped fighting it. Then I looked at it from a different perspective of this just being a problem in my life and I can fix it. There are certain ways that this can be fixed, so that it comes with an acceptance. So you can understand how your body works, you can understand how important it is to take care of it, how important sleep is for you, how important eating is for you, how important exercising and moving your body is for you. All of these things, you read about it, you get informed, and also apply that in your life and look for signs, experiment with it. ऐसे जैसे आप करते रहोगे ना, आपके अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ आएगा, जो सेल्फ आएगा कि मैं अपनी बॉडी की टेक केयर करती हूँ या करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरह ट्रीट करता हूँ या करती हूँ. एंड इसका काम ये भी है कि मैं ऑफिस जाके काम करूँ, इसका काम ये भी है कि ये मेरे को सस्टेन करे एक हेल्दी वेसल में, राइट, और मुझे मन से भी अच्छा लगे. तो आप फर्स्ट चीज़ तो ये करें. दूसरी चीज़, जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा आप डिफरेंट डायरेक्शंस में पुश किए जा रहे हैं, जो कि होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं, तब आपको धीरे धीरे बाउंड्रीज बनानी स्टार्ट करनी पड़ेंगी. नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, मे बी धीरे धीरे करनी पड़ेगी. कभी कभी आपको उस बाउंड्री के उधर जाके भी काम करना पड़ेगा, इधर भी जाके काम करना पड़ेगा, किसी प्रोसेस या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा. पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी आपको अपना इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, दिमाग झोंकना पड़ेगा, टाइम झोंकना पड़ेगा. पर उसके बाद आप धीरे धीरे, जब नहीं हो रहा है तो स्टेप बैक ले लो, धीरे 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 के इम्प्लीमेंट करो और देखो कि जब मैंने स्टेप बैक लिया, डिड इट चेंज द वर्ल्ड. मतलब दुनिया इधर की उधर तो नहीं हो गई, नहीं होती है हमेशा. वो एंजाइटी से धीरे धीरे ऊपर उठो और अपने दिमाग में ये मैकेनिज्म फीड करो कि एक्शंस जितने जितने आप अपने दिमाग को बताओगे कि मैं जब भी इस स्टेज पे आ जाऊंगा या आ जाऊंगी कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी बॉडी को, कि मैं रेस्ट करूंगी, तो बॉडी भी ओके फील करेगी कि व्हेन द टाइम विल कम दिस पर्सन विल रेस्ट, बट लेट मी हेल्प दिस पर्सन गो अक्रॉस, फिनिश दिस गोल, एंड देन आई विल गेट माई रेस्ट. धीरे धीरे, बट रेस्ट आपको करना है, आपको अपने दिमाग को बहकाना नहीं है. मैं बहुत बार ऐसा करती हूँ कि मैं रेस्ट करना भूल जाती हूँ, और ये मेरी एक फैलेसी है जिसको मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चेंज करने वाली हूँ. मैं अपने दिमाग को बताऊंगी तो, बट बहुत बार रेस्ट को लेती नहीं हूँ, दूसरी चीज़ पे चल जाती हूँ. मेरे लिए बहुत चीज़ें अब वर्कआउट कर रही है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कर पा रही हूँ अपने हेल्थी टचवुड बॉडी की वजह से, और इसी वजह से मैं बहुत लिमिट भी पुश कर पा रही हूँ. पर धीरे धीरे मेरी वो लिमिट कैसे बढ़ी, क्योंकि मैंने पहले एकदम स्टॉप किया, अपने आप को एक स्पेस दी और सारी चीज़ें साइड में करके हेल्थ पे फोकस किया. और उसके बाद मुझे रियलाइज हो, कभी भी उतने एंड पर आपको नहीं जाना है. जब भी फील हो ओके, यू नीड टू स्टॉप नाउ. Nothing is the end of the world. My body is my number one priority. I always say health is a paramount priority in your life, and no amount of money, no amount of success is ever going to replace it. Maybe बहुत सारी problems अभी भी body में exist करती है because of so many years of neglect. I can't reverse that. I am trying by being as healthy as I can. But बहुत सारी चीज़ें नहीं reverse होंगी, आपके पास दुनिया भर का समय नहीं है. तो शांति से बैठ के अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करो और ऐसे ही सोचो कि मैं इसकी टेक केयर करूँगा या करूँगी. थर्ड, यू नीड टू कंटिन्यूसली मेंटेन योर बॉडी. यू डोंट हैव टू थिंक कि एक दिन मैंने एक्सप्लॉइट कर लिया, फिर नेक्स्ट दिन मैंने कुछ एक्सप्लॉइट कर लिया, थर्ड दिन मैंने कुछ और प्रोसेस में एक्सप्लॉइट कर लिया और मेरी बॉडी हमेशा वैसी ही रहेगी. हर एक एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है. हर एक चीज़ जो आपकी बॉडी में जा रही है, आप खा रहे हो या फिर जो थॉट्स आप अपनी बॉडी में दे रहे हो, अपने दिमाग में दे रहे हो,
हर एक चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होता है। हर I always say small things are more important than the bigger things. It is the small things that make up the bigger things. And as little as anything, हवा भी आपके अंदर जा रही है तो उसका भी एक आपकी बॉडी पे इफेक्ट है। उसको समझो और बहुत केयरफुली होलिस्टिकली अपना स्केड्यूल या अपनी लाइफ को जीने का तरीका बनाओ। एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, ठीक है, आप कंटिन्यूसली उसको नहीं सस्टेन कर सकते हो। उसी के लिए आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करो कि आप समझ पाओ कि मेरी को सोना है टाइम से, मुझे 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही यार। और अगर मैंने दिन में एक्सरसाइज नहीं करी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा सेरोटोनिन नहीं आएगा और मेरी बॉडी की मरम्मत या मेंटेनेंस नहीं होगी। जो मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ वो भी एक चीज़ होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मैं क्या खा रहा हूँ, क्या खा रही हूँ, और उससे मुझे एक बहुत सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होना चाहिए। मैंने जैसे बोला, मैं पहले ना खाना खाती नहीं थी, ना मुझे बनाना आता था। फिर धीरे धीरे मैंने उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, मैंने उसको गेम करना स्टार्ट किया सिस्टम को कि ठीक है मैं खुद से बनाती हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। और ऐसा करते करते अभी मुझे खाना बनाना पसंद है और मैं एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ। और जब मैं बहुत ही अच्छा किसी दिन खाना बना लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं बहुत अप्रिशिएटिवली डिफरेंट क्यूजीन्स ट्राई करती हूँ एंड माई टेस्ट बर्ड्स हैव जस्ट इनहैंस। सो आई फील लाइक I've just completely did a 360 degree in the outlook that I had towards eating and towards feeding myself, and it's just been a very wonderful journey where I appreciate food and taste for what it is. It is supposed to sustain your body. With that, I also eat at home a lot and I have been able to see such remarkable differences in my energy, in the way that I get productive burst, in the way that I feel very relaxed. सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं कि आपको पता होना चाहिए आप अपनी बॉडी में क्या कर रहे हो, क्या डाल रहे हो, केयरफुली उसको रिस्पेक्ट करते करते करो। कभी कभी चलता है बट ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि आप उसका ख्याल रखने के लिए अच्छी चीज़ें कर रहे हो, अच्छी चीज़ें खा रहे हो। और जैसे मैंने बोला एक्सरसाइज करो, वो भी आपके कॉन्फिडेंस में ऐड ऑन करता है, वो भी आपको रेस्टेड फील कराता है। तो लास्ट पॉइंट मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि जब भी आप बर्नड आउट हो, ट्राई करो कि आपके गुड कोपिंग मैकेनिज्म हो, वन दैट ऑल्सो helps you feel relaxed and rested and doesn't even feel like a chore. One parameter of productivity could be going to the gym, right? कुछ लोगों को लगेगा ये भी बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है, जो कि है, पर अगर आप उसी को एक कोपिंग मैकेनिज्म बना दो और बोल दो कि जब मैं जिम जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसको मैं अपने रेस्ट टाइम की तरह यूज़ करूँगी। रेस्ट टाइम का ये मतलब नहीं है कि बस बैठे रहो, ठीक है वो भी है, स्पेस दो, स्लोनेस का भी एक स्पेस होना चाहिए लाइफ में, बट दैट कैन ऑल्सो मीन अ वेरी fast activity. Like I prefer to go running and it is very relaxing. It is such a oxymoron that I am being competitive, I am being ambitious, I am being a go-getter when I am running, but deep down it is relaxing me to no effect. It also makes me feel very productive and at the end of the day I get to sleep well. My appetite is really good. So in that sense धीरे धीरे आपका एक होलिस्टिक एटीट्यूड हो जाएगा लाइफ में कि जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैं खा रही हूँ, मेरी हेल्थ में एड ऑन कर रहा है। इवन माई प्रोडक्टिव सेल्फ एट वर्क हेल्प्स मी गेन अ सेल्फ कॉन्फिडेंस and at the end of the day my mental health is good. I feel less anxious, I feel less depressed when I feel a sense of purpose in my life. तो ये 3-4 चीजें आपको जरूर हेल्प करेगी। कभी कभी मुझे लगता है कि ये ऑब्वियस सी बातें हैं, ऑब्वियसली सबको पता होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली हमें ये सारी बातें एनीमोर पता नहीं है। वी लिव अ वेरी फास्ट वर्ल्ड, सो टेक दिस एज अ रिमाइंडर. If you are feeling like burnt out, take some time for yourself today. Sit with a cup of coffee and a good book and just relax. Try to understimulate yourself. Try to sit with yourself and just breathe through things. It is a very long life, one that you can't afford to waste on being unhealthy, feeling sick, feeling icky in yourself. There's going to be time ups and downs, but that's not the goal, right? Your goal is to take care of yourself and you absolutely must take care of yourself. You totally deserve the love the body wants and asks of you. It will ask you if you neglect it. That's it for today. I hope you guys enjoyed this video and I'm just giving my very honest, candid opinion, thoughts and stories from my experience. किसी को अच्छा लगे तो अच्छा लगे, ठीक है, किसी को अगर नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है। मैं देखती हूँ शायद सब लोगों को
ये स्टोरी अच्छी नहीं लग सकती है, मे बी दे टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, दैट्स ऑल्सो टोटली ओके विद मी. बट इफ यू आर समवन हु हैज कम हेयर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अवे सम वैल्यूएबल लेसन्स इन द प्रोसेस, आई होप यू गॉट देम. मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और मैं आशा करती हूँ कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, और क्या पता आप एक रिलैक्स्ड और डिफरेंट आउटलुक के साथ अपनी लाइफ की गाड़ी आगे कंटिन्यू करते रहें. तो यही मेरी होप है, यही मेरे अटेम्प्ट है विद दीज वीडियोस. With that said, I will take your leave for today. If you like the video and like it, comment down below if you are able to relate, or if you're not able to relate, share it with your friends and families. And if you like the channel, please consider subscribing to it. I'm trying to monetize this channel as soon as possible. And with that said, I hope you have a good time. I hope you have a good week ahead. I will see you next time. Until then, bye bye.